student, we start the 12th standard chapter, that is the chemical thermodynamics and energetics. ये chapter हम पढ़ रहे हैं. In previous lecture we learned the topic the properties of the system. The first property is the intensive property, second is the extensive property. Then we learn the state of system and then state function और thermodynamic function. इसके हमने पढ़ाई की. Thermodynamic function क्या है? The system in which the state of system is depend only upon the initial and final state of the system. मतलब हमारे जो सिस्टम है किसके ऊपर डिपेंड है? ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड है. उसका एग्जांपल है एनर्जी, एंथैल्पी, वॉल्यूम, then pressure, temperature. These all are the thermodynamic functions. But heat and work are not the state function. This is the path function. Today we learn our next topic, that is the thermodynamic equilibrium. क्या है ये आज हम पढ़ने वाले हैं. तो आज का टॉपिक है हमारा thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मेरा चैनल नेम है शारदा श्रीवास्तव. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? अ सिस्टम इन विच अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लाइक द टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इट डज नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? The state of system in which the fundamental properties in which the state of system a system sorry not a state of system a system in which the fundamental property कौन से है आपको पता है? The fundamental properties like pressure, volume and temperature does not change with time. It does not change with time. ये क्या होती है? टाइम नहीं, जैसे भी टाइम स्पेंड हो जाता है वैसे भी हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता. इसलिए दिस इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? सिस्टम इन विच द फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. In thermodynamic equilibrium again divided into three types. First type is the thermal equilibrium. It is again three types. First is the thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Second is the chemical equilibrium. Chemical equilibrium. And third is the mechanical equilibrium. These all are mechanical equilibrium. These all are the types of thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium की definition क्या है? A system in which the fundamental properties like the pressure, volume, temperature does not change with time is called as the thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium is again divided into three types. First is the thermal equilibrium, second is the chemical equilibrium and third is the mechanical equilibrium. So thermal equilibrium means the system in which the temperature of the system is not changed with time. It is yeah, the temperature of the system, the temperature of the system is not, the system does not change with, it does not change with टाइम. यहाँ पे क्या टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हो जाता तो हम इसे क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम. यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता. सेकंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम. इन केमिकल इक्विलिब्रियम द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर इन द सिस्टम. यहाँ पे क्या है? द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, द केमिकल कंपोजिशन मतलब जो भी हम केमिकल जिस प्रोपोर्शन में हम ले रहे हैं उसका जो कंपोजिशन फिक्स है. H2O का कंपोजिशन क्या है?
2 molecules 2 atoms of oxygen and 1 atom of hydrogen। ये केमिकल कंपोजिशन क्या है, फिक्स है। वैसे भी हमारे यहाँ पे क्या, जो मैटर का केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम इसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, the chemical composition of matter in system is does not change with time। यहाँ पे भी क्या, कोई हमें चेंज नहीं चाहिए, उसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो हमें फिक्स चाहिए। इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और द प्रेशर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विथ टाइम। यहाँ पे क्या है, द प्रेशर of the system remains constant or the pressure of the system does not change with time। the pressure of the system does not change with time। Time is called as the mechanical equilibrium or the mechanical properties of the system does not change with the time। हम इसे ऐसे भी बोलते हैं, जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है सिस्टम की वो क्या चेंज नहीं हो रही, तो हम उसे क्या कहते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज आवर टॉपिक, दिस इज अ वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको 2 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है। और which type of equilibrium is happen when the temperature is constant, when the chemical composition is constant, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, इसके ऊपर भी आपको सीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिस इज आवर बेसिक। देन फर्स्टली आपको अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोलना है तो वहाँ पे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के जो भी वेरिएबल है लाइक द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या होती है, डज नॉट चेंज विद टाइम। ओनली थर्मल इक्विलिब्रियम तो ओनली थर्मल मीन्स टेम्परेचर, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर इज डज नॉट चेंज एंड इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक द प्रेशर इट इज आल्सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो प्रेशर क्या होता है और सिस्टम का चेंज नहीं हो जाता है विद टाइम। दिस ऑल आर वी सी इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक, वेरी शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट। Then we see the next topic, types of thermodynamic process। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में कौन कौन से टाइप के प्रोसेस है वो आपको स्टडी करनी है। आप नेक्स्ट पॉइंट में टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। Our next topic is types of thermodynamic process। पहले आपको प्रोसेस क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद में हम 1 by 1 प्रोसेस लर्न करेंगे। फर्स्टली वी सी द व्हाट इज द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, द पाथ और ऑपरेशन बाय विच द सिस्टम कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। प्रोसेस मीन क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स द पाथ और ऑपरेशन, path of operation in which by which the path or operation by which a system changes from one state to another state। यहाँ पे क्या है, प्रोसेस में द पाथ और ऑपरेशन बाय विच अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आपने पहले भी देखा व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स फंक्शन। थर्मोडायनामिक फंक्शन में क्या है, द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। वहाँ पे हमारे जो सिस्टम है थर्मोडायनामिक में हम जब भी स्टडी करते हैं तो हम उसकी पाथ और ऑपरेशन का, उसके पाथ का नहीं पाथ के थिंकिंग नहीं करते, बिकॉज वी आर स्टडी ओनली इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इन दोनों के बारे में हम सोचते हैं। तो आपको मतलब हम वन स्टेट से अनदर स्टेट में जाने वाले हैं, तो वहाँ हम कौन से
मार्क पे जा रहे हैं और बाय विच ऑपरेशन को कौन सी प्रोसेस के यूज करके हम वहाँ हमारे जो एम है टू रीच अप टू द स्टेट सेकेंड, हमको जो फाइनल स्टेट में जाना है, इसीलिए हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं और कौन सा पाथ यूज करने वाले हैं, उसके हिसाब से हम इसे क्या कहते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब द पाथ और ऑपरेशन बाय विच सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। फर्स्ट स्टेट से आपको पता है दिस इज आवर स्टेट फंक्शन, थर्मोडायनामिक फंक्शन और हम इसे स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। दिस इज आवर प्रेशर, दिस इज आवर वॉल्यूम। तो हमने वहाँ पे ऐसा ग्राफ देखा था, यहाँ पे ए पोजीशन है, यहाँ पे बी। दिस इज आवर इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, दिस इज आवर फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। इसका फाइनल प्रेशर है P2, वॉल्यूम है P2। When we are going towards the change in pressure means P2 minus P1. Change in volume delta P means P2 minus P1. This is our state function. हम in thermodynamic chapter we learn about the only state function. हमें सिर्फ यहाँ state function के बारे में थिंकिंग करनी है। तो this is our initial position और initial state of the system and this is our final state of the system. तो हमारी प्रोसेस क्या बताती है the path or operation by which the system changes from one state to another state. मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, तो this मतलब कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं और कौन सा पाथ यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम दिस टाइप ऑफ पाथ और ऑपरेशन को क्या कहते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस में द पाथ और ऑपरेशन बाय व्हिच द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। लेट अस वी सी द नेक्स्ट वन बाय वन प्रोसेस। हमारे फर्स्ट प्रोसेस का नेम है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। इसकी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस इट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल मीन्स हीट, आपको पता है in thermal equilibrium we see the temperature of the system remains constant or the temperature of the system does not changes with time is called as the thermal equilibrium. Isothermal means the temperature of the both system is constant. इन दोनों के बीच में isothermal process में क्या होता है, temperature in initial state and final state का जो initial state of the system and final state of the system का temperature क्या है, constant. Means the change of temperature in the isothermal means the same temperature. तो यहाँ पे क्या, temperature of the system remains constant. इसकी definition क्या है, the process in which the temperature of the system, the process in which the temperature of the system remains constant. यहाँ पे क्या है, the temperature of the system remains constant. ये constant, ये हमारा क्या है ग्राफ, यहाँ पे है प्रेशर, यहाँ पे है वॉल्यूम, दिस इज आवर स्टेट ए, यहाँ पे है स्टेट बी। इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। इसका भी प्रेशर P1, वॉल्यूम V2 एंड T2। तो इन बोथ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या है, आइसोथर्मल मींस आइसो मींस सेम, थर्मल मींस टेम्परेचर। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। मतलब T2 इज इक्वल टू T2 मींस चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या है हमारा, 0। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आता है हमारा, 0। The temperature of the system remains constant is called as the isothermal process. Here we have one process. Next process is the adiabatic process. Next process is the adiabatic process. Adiabatic process. एडियाबैटिक की प्रोसेस की क्या डेफिनेशन है, द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी कि Q, द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। द हीट कंटेंट जिसको हम क्या कहते हैं, Q, हीट कंटेंट हम Q से डिनोट करते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। इन आवर वन बाय वन वी यूजिंग द नंबर ऑफ नोटेशन फॉर पर्टिकुलर, टेम्परेचर के लिए T, प्रेशर के लिए V, हीट कंटेंट के लिए Q, फॉर वर्क डन के लिए W, और सम बुक्स में यूजिंग W, सम बुक्स में यूजिंग U भी यूज किया है। तो हम कौन सा हमारे बुक के हिसाब से यूज करने वाले हैं। देन फॉर एंथैल्पी देयर इज यूजेस ऑफ E, एनर्जी के लिए भी E भी है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको वन बाय वन नोटेशन ध्यान में रखने चाहिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में द हीट कंटेंट Q of the system remains constant, of the system remains constant.
मतलब यहाँ पे हमारा जो हीट कंटेंट है यानी कि क्यू क्या है ऑफ द सिस्टम का कांस्टेंट है, मतलब हमारे जो सिस्टम है वो सिस्टम की हीट क्या है कांस्टेंट, इट नाइदर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ये सिस्टम क्या है सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब भी नहीं करती और डोंट इवॉल्व इट कांट रिवॉल्व हीट टू द सराउंडिंग। ये उसके पास जो हीट कंटेंट यानी कि क्यू जितनी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या सराउंडिंग में इवॉल्व भी नहीं करती और एब्जॉर्ब भी नहीं करती। Hence the heat content of the system remains constant, यानी कि heat content कब constant रहता है in isothermal process, isothermal isolated system, in isolated system we use the thermoplast, thermos flask हमने यूज किया है, thermos flask it is the example of isolated system, isolated यानी it can't evolve heat with the surrounding and can't absorb it from the surrounding, इस surrounding में heat evolve भी नहीं करती और absorb भी नहीं करती, तो this process is happen in thermos flask because here the heat content of the system remains constant. Next है isobaric process, isobaric process, baric means pressure, iso means same, यहाँ पे क्या है the pressure of the system remains constant, pressure of the system remains constant, यानी कि डेल्टा P इज इक्वल टू क्या है 0। देन आइसोकोरिक प्रेशर, नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है डेल्टा V इज इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 यानी कि द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द देयर आर मेन 7 टाइप्स of process. The first is isothermal, second is adiabatic, third is isobaric and fourth is isocoric. The next process is the cyclic process. This is a very simple process, means the path or operation by which the system changes from one state to another state. Isothermal means thermal means temperature, iso means same temperature, hence here the temperature of the system remains the constant, delta T is equal to 0. Adiabatic process, the heat content of the system remains constant यानी कि delta Q is equal to 0. यहाँ पे isobaric process, the pressure of the system remains constant and delta P is equal to 0. Isocoric pressure, the volume of the system remains constant यानी कि delta V is equal to 0. Then we see the next process, this is the cyclic process. Fifth process, it is the cyclic process. Fifth is the cyclic process. In next lecture we see the cyclic process and then another remaining 2 process and the difference between the isothermal and adiabatic process, इन दोनों के बीच में कौन सा डिफरेंस है ये भी हम लर्न करने वाले हैं। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।